next our like topic is various salts, like few salts which we are using in daily life. You need to do their preparation method, their proper. And am I audible? So Yes, ma'am. Yes. okay, thank you, ma'am. तो मैम वीडियो हैंग हो रही है बीच बीच में. Okay. Few salts which are important in our daily life. They are discussed in this chapter, and their preparation or their occurrence, where they are obtained in nature, and how they are used to prepare further important chemicals. तो उनकी applications, उनकी properties and उनकी preparations आपको syllabus में है बेटा. तो first is the most common salt that we are using in a daily life is the table salt, and table salt is chemically named as sodium chloride. Okay. And otherwise salts can be formed by combination of acids and bases, and common salt can be obtained by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide. Okay, but otherwise this common salt is obtained actually not by this method. इसको prepare नहीं किया जाता, rather it is readily available in the form of like dissolved salt in sea or different water bodies. ठीक है, सी वाटर में बहुत ज्यादा अमाउंट में कई तरह के सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं इन सर्टेन प्लेसेस इन आवर कंट्री. वेरियस यू कैन से like lakes are there which have dissolved salt. So from that lakes also this common salt is obtained, and sodium chloride is separated from the salts which are already dissolved in sea water or lake water. ठीक है, एंड उसको फिर फर्दर सेपरेट आउट करके इम्प्यूरिटीज को अलग करते हैं, एंड दिस सॉल्ट विच इज आफ्टर यू कैन से इम्प्यूरिटी से जब एक्चुअली इवेपोरेट होता है तो नियर दैट वाटर बॉडीज वो कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई सॉल्ट विच इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. एंड रॉक सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर बॉडीज, मतलब उनके आसपास जो है प्रॉपर इसके बेड्स होते हैं, उस बेड से उसको ऑब्टेन करके इंडस्ट्रीज में इट इज फर्दर प्रोसेस्ड in order to remove various impurities, because the things which are occurring in nature, so always they have impurities in that, so it is further purified. And you know that sodium chloride is a very important salt. Without it the food will not have a taste. Now okay, आप कभी भी अगर without salt food खाओगे तो it will not be appealing for you. So it is a very important salt which is obtained naturally, एक raw material, और इसको further सिर्फ हमारी किचन तक ही यूज नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन इंडस्ट्रीज एज वेल, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे ऐसी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जो फर्दर सोप्स बनाने में भी यूज होता है, और भी बहुत सारे यूजेस है. इवन ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा यूज होता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट compound which is prepared by using sodium chloride. Okay, so next we'll discuss how sodium hydroxide is prepared in industries using common salt. तो इसके लिए एक प्रोसेस है which is known as chlor alkali process. Underline this in your book, chlor alkali process. इस प्रोसेस को ये नेम क्यों दिया गया, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं. इफ यू सी द रिएक्शन, इसमें करना क्या है कि सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमन सॉल्ट, इसको एक्वस, इसका सॉल्यूशन बना लेना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन विच इज नॉर्मली नोन एज ब्राइन. ब्राइन इज द कॉमन नेम of aqueous solution, generally saturated solution of sodium chloride in water. Aqueous solution of sodium chloride is known as brine. And brine को फिर उस इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज करना है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है. व्हेन a compound is decomposed by passing through electricity, then it is named as electric decomposition or electrolysis. So electrolysis of brine, that is aqueous solution of sodium chloride, which can be written chemically as NaCl plus H2O. This is the you can say ब्राइन की कॉम्पोजिशन होगी, उसमें सॉल्ट भी है प्लस वाटर ऐड किया हुआ है. और क्योंकि आप वाटर जब तक ऐड नहीं करोगे, कोई भी सब्सटेंस जो है केमिकल सब्सटेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आयंस जो है वो वाटर में ही प्रोड्यूस होते हैं.
तो sodium chloride will release its ions in water and that's why it conducts electricity here. तो electricity conduct होगी, then only electrolysis will take place. Okay. तो ब्राइन पे अपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, अब उस पे क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इफ यू रिमेंबर इन 8th क्लास यू हैव आल्सो डन दैट आयंस आर प्रोड्यूस्ड. तो सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस सोडियम आयंस एंड दूसरे आयंस कौन से प्रोड्यूस होंगे, इट कंटेन्स क्लोराइड आयंस. ये दो तरह के आयंस इससे प्रोड्यूस हुए. ठीक है. And water will also produce hydrogen ions and OH ions. अब ये 4 टाइप के आयंस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, because water will release hydrogen ion and hydroxide ions and NaCl will release sodium ion and chloride ion. Now electrolysis process involves supplying electricity by using two metal rods. These metal rods are known as electrodes and they are named as anode and cathode. तो जो इलेक्ट्रोड या जो मेटल प्लेट हमने कनेक्ट की हुई है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ, दैट इज नोन एज एनोड, एंड द electrode or the metallic plate which is connected with the negative terminal of the battery is termed as cathode. तो आपके पास दो oppositely charged plates यहाँ पे present है electrolysis process में. अब ये देखो यहाँ पे 4 type of ions है. Ions always migrate during electrolysis towards oppositely charged electrode. So sodium ion and hydrogen ion, these are positively charged ions, so they will migrate towards cathode, and chloride ions and hydroxide ions will migrate towards anode. अब क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, जिस आयन की टेंडेंसी ज्यादा होती है अपने आप को डिस्चार्ज करने की, अपने चार्ज को रिलीज करने की, उस इन जितने भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंशियल ऑर्डर में एक ही आयन वहां पे जाके डिस्चार्ज होता है. तो सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन में से हाइड्रोजन हैज हायर टेंडेंसी टू रिलीज इट्स चार्ज, and out of chloride and hydroxide ion, these chloride ions have higher tendency to get deposit or to get discharged at the anode. Okay, so you can see here in this process chlorine gas is released at anode because chloride ions release, or you can say they discharge and they get discharged and they combine together to form Cl2 molecule. Chlorine atoms will combine together to form chlorine molecule, and chlorine gas is produced at anode, and out of sodium and hydrogen ions will get discharged at cathode to form hydrogen gas. So in this process you are getting two gases, hydrogen gas at cathode, chlorine gas at anode. अब बाकी जो दो टाइप के आयंस बचे, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन, which are not at all getting discharged due to their lesser tendency to get discharged over there. So they combine together to form a liquid or aqueous solution of sodium hydroxide. अब aqueous solution कैसे आएगा? Because we are already taking water here. तो वो water में ही mix हुए हैं ions, so they will form aqueous solution of sodium hydroxide. So after passing electricity through brine or the aqueous solution of common salt or sodium chloride, two gases are released at metal electrodes, hydrogen at cathode, chlorine at anode, and we get a concentrated solution of sodium hydroxide. So why this process is known as chlor-alkali? Because chlorine gas is evolved, तो उसके लिए term दिया है chlor. Alkali is for NaOH, because alkali का मतलब होता है strong basis. बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशंस या बेसिस को हम जनरली अल्कलाई टर्म यूज करते हैं. तो एज वी आर ऑब्टेनिंग हियर अ स्ट्रॉन्ग बेसिक सब्सटेंस NaOH, hence the process is called as chlor-alkali due to the formation of two important substances, chlorine gas and alkali. Otherwise तो तीनों ही products बहुत useful है. Hydrogen gas is also useful, chlorine is also useful, sodium hydroxide is also useful. So this reaction is used to prepare sodium hydroxide in industries. Okay, and the name of the process is chlor-alkali process.
तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉमन सॉल्ट, और व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. तो these are various forms by which this question may be asked. आंसर आपको सिर्फ इसी रिएक्शन से रिलेटेड देना होगा. अब यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम के साथ ही बुक में गिवन है. These are the three products which are obtained by chlor-alkali process: hydrogen gas, chlorine gas, and sodium hydroxide solution. So hydrogen is further used in fuels. As you know that it is a very you can say eco-friendly fuel है hydrogen, because it has very high combustible value. जो इसकी heat calorific value है वो बहुत high है. Moreover, it is a non-polluting fuel because when it burns in oxygen, product formed is always water vapor. तो ये कभी भी कार्बन या अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम ऑल दैट कार्बन इम्प्यूरिटीज. ओनली हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. तो हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. तो वाटर वेपर्स आर ओनली रिलीज. So this is the cleanest fuel till date we have, but it is right now it is not used as domestic fuel or for vehicles. Generally it is used in rockets, spaceships वगैरह में अभी use होता है. But टाइम वो दूर नहीं जब हमारी फ्यूल्स क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, जब हाइड्रोजन को एक डोमेस्टिक फ्यूल की फॉर्म में यूज करने के मेथड्स अवेलेबल हो जाएंगे. राइट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल. इसके सिलेंडर्स अगर हम घर में रखते हैं और बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इट कैन कॉज लाइक सिवियर एक्सप्लोजन्स. बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है. एक छोटी सी लाइक यू कैन से चिंगारी जिसको बोलो, इसके लिए सफिशिएंट है. और समटाइम्स तो एट रूम टेम्परेचर इट कैचेस फायर इमीडिएटली ना, तो इट इज वेरी रिस्की. तो इसको स्टोर करने का अगर एक सेफर मेथड डेवलप कर लेते हैं हम साइंटिस्ट हमारे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे एनर्जी क्राइसिस दूर हो जाएंगे. बिकॉज हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय क्लोर एल्कलाई प्रोसेस. रॉ मटेरियल बहुत हमारा चीपर है, सोडियम क्लोराइड. हरलीन कौर बेटा, स्टॉप योर एनोटेशंस. And hydrogen can be easily prepared by electrolysis of you can say water as well. ठीक है. तो क्लोरीन हाइड्रोजन के और यूजेस है. मार्जराइन होता है एक तरह का, आजकल आपने देखा होगा बटर दो तरह के आते हैं. मार्जराइन जो बटर है वो क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में. ठीक है. वो क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो हाइड्रोजनेट उनको किया जाता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाती है एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ मार्गरीन. अमोनिया बनाया जा रहा है इंडस्ट्रीज में बाय ट्रीटिंग हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन गैस, एंड दिस अमोनिया इज अ वेरी यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स. क्लोरीन इज फर्दर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. वाटर ट्रीटमेंट मतलब जब वाटर को वाटर वर्क्स में प्यूरिफिकेशन किया जाता है वाटर का, तो लास्ट प्रोसेस जो है क्लोरीनेशन टैंक से वाटर को पास थ्रू करते हैं, एंड इन दिस टैंक क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द वाटर वेयर क्लोरीन इज यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड यू कैन से और जर्मिसाइड. ये माइक्रोब्स को किल कर देता है. इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग दोज जर्म्स. तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है क्लोरीन गैस. स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लेंजिंग पर्पज. PVC is a polymer which is used to prepare various plastic items. जैसे PVC के बने हुए आर्टिकल्स अब आजकल तो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम में भी यूज हो रहे हैं. अदरवाइज PVC के और भी डेली लाइफ आर्टिकल्स बहुत आते हैं. इट इज जस्ट लाइक अ प्लास्टिक मटेरियल. पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द फुल फॉर्म. PVC की प्लास्टिक बॉटल्स भी आती हैं. डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज, वो मैंने आपको बता दिया कि इट इज अ वेरी गुड जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज इसकी हैं, तो डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज होता है. CFCs बनाने में, CFCs है हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स और डिओड्रेंट्स में यूज होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. These are made by using, but otherwise nowadays CFCs production is controlled because they are causing ozone depletion. तो इनका प्रोडक्शन जहाँ जरूरत है वहां तो कर ही रहे हैं. अभी भी पेस्टिसाइड्स बनाने में भी क्लोरीन यूज हो रहा है. DDT जो हमारा बहुत एक कॉमनली यूज्ड Indian pesticide है, that is prepared by using chlorine. And next, NaOH is used in soaps and detergent industries for making soaps and detergents. Paper making, paper otherwise cellulose से बनता है, which is a polymer obtained from plants, but उसको further treatment किया जाता है NaOH के साथ. Rayon जो artificial fiber है
that is also obtained by treatment of NaOH over cellulose. Degreasing metals को अगर उस पे कोई grease या oil like substances stick हो गए हैं तो उसको clean करने में भी use होता है. So these are uses of NaOH. And all these uses you need to at least learn 2 uses of these. Otherwise कोई भी एक 1 mark question में पूछ सकते हैं कि which chemical obtained from chlor-alkali process is used as or used to prepare fertilizers. So that will be hydrogen. Used to prepare various important polymers like plastics, PVC and all. Then it is chlorine. Paper industry and soap industry में use हो रहा है NaOH. अब hydrogen and chlorine can be combined together to form a very important compound known as hydrochloric acid. ये HCl गैस होती है, इन दोनों की रिएक्शन से बनती है and which is further dissolved in water to form hydrochloric acid, which is further used in cleaning steel because acids को कई जगह cleansers की form में use किया जाता है. Further it is prepared used to prepare ammonium chloride, medicines, cosmetics, etc. And sodium hydroxide and chlorine are further combined together to form bleach. Household bleach, bleaching powder जिसको हम कहते हैं, that can also be prepared. Actually bleaching powder is calcium oxychloride. Household bleach होता है sodium oxychloride, sodium hypochlorite भी कहते हैं. तो right now अभी market में बहुत use हो रहा है because after this COVID कोरोना वायरस को किल करने के लिए जो हम एज अ डिसइंफेक्टेंट सरफेस पे यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में भी. सैनिटाइजर तो हम अपनी बॉडी पे यूज कर रहे हैं ना, बट सरफेस क्लीनर के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं. तो दैट सोडियम हाइपोक्लोराइड इज कॉमनली नोन एज हाउसहोल्ड ब्लीच विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन. सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl. This is the formula of this household bleach, which is used for bleaching fabric. Otherwise it is a very good disinfectant, surface disinfectant है ये जो hospitals में या actually जितनी भी shops हैं या जो malls वगैरह ये लोग cleansers जो use कर रहे हैं. Even in our school we are sanitizing our furniture by using sodium hypochlorite solution. Sodium hypochlorite has very good disinfectant properties. So next next salt which is in your syllabus is bleaching powder. Bleaching powder is a common name for calcium oxychloride. This is the formula CaOCl2. Calcium for Ca, O oxy हो गया और Cl for chloride. तो calcium oxychloride is the chemical name of bleaching powder. And अभी मैंने आपको बताया household bleach is prepared by treating chlorine and NaOH. अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड था. तो कैल्शियम को अपने मतलब सोडियम को रिप्लेस करना है कैल्शियम पे, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल में NaOH की जगह आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ेगा. तो अदरवाइज रिएक्शंस आर सेम. NaOH plus Cl2 form NaOCl plus H2O and CaOH twice plus Cl2 will form, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ Cl2 आएगा, सोडियम के साथ NaOCl एक ही Cl आता है. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन कंबाइन टू गिव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर. रिएक्शन इज सिंपली यू कैन से यहाँ पे OH2 की जगह आपने OCl2 कर देना, बट यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम एंड हाइड्रोजन के जो लाइक 2 एटम्स रिलीज होंगे, दे विल फॉर्म वाटर. ठीक है, बिकॉज आप इसको बैलेंसिंग जब करोगे देन इट विल फॉर्म H2O, sorry, hydrogen 2 atoms and 1 oxygen which is released out, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही ऑक्सीजन ऑक्सीक्लोराइड में यूज हो रहा है. द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज CaOCl2. ये CaOH twice है, then 2 oxygen atoms are there. 1 water molecule is eliminated out. And bleaching powder is commonly used in paper and cloth industry for bleaching cotton. Even paper industry में भी पेपर को white बनाने के लिए जब wood pulp को पहले bleach किया जाता है by using this bleaching powder. And cotton जो हमारी फगवाड़ा में ही है, cotton industry, JCT textile industry, there also this bleaching powder is used because cotton and linen are first to bleached out. उसका जो proper white color है वो तभी आएगा जब उनको पहले bleach किया जाता है. तो bleaching industries use this calcium oxychloride as bleaching powder.
and they may also use sodium oxychloride, sodium hypochlorite भी वो use कर सकते हैं, that is NaOCl. And it is also used an oxidizing agent. Oxidizing agent वो होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो calcium oxychloride can easily release oxygen present in it, and hence it is used to to provide oxygen in various chemical reactions. So it is acting as an oxidizing agent and disinfecting drinking water. ये अभी जो मैंने आपको बताया कि water works में या तो क्लोरीनेशन टैंक में डायरेक्ट क्लोरीन गैस पास कर देते हैं, अदरवाइज अगर क्लोरीन अवेलेबल नहीं है तो क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं एक्चुअली, वो अगर अवेलेबल नहीं है देन दे कैन आल्सो ऐड ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट. तो ब्लीचिंग पाउडर आल्सो हैज जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज, इट कैन किल जर्म्स एंड डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर. तो क्लोरीनेशन, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर भी एक्चुअली वाटर में ऐड करके क्लोरीन ही रिलीज करता है, तो कर तो वो क्लोरीनेशन ही रहा है. बाय क्लोरीनेशन इट इज, क्योंकि क्लोरीन जो रिलीज होती है इट इज पॉइजनस इन नेचर. क्लोरीन को हम ज्यादा इनहेल कर ले तो हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल है, इट इज टॉक्सिक इन नेचर. बट इन स्मॉल अमाउंट इट इज एडेड इन ड्रिंकिंग वाटर so that it can kill only the germs, and in that amount it is not harmful to us. But if we inhale chlorine gas in a larger amount it will have a toxic effect. So bleaching powder and chlorine both are used for disinfecting drinking water. Next salt is baking soda. Just wait. Baking soda we have discussed so many times. It is a common name used for a chemical sodium hydrogen carbonate. This is the formula NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate is commonly known as baking soda due to its enormous use in baking industry. Basically it is used in baking industry to prepare crispy like पकौड़ा तो हम लोग घर में एक्चुअली बना रहे हैं, बट अदरवाइज केक बेकिंग इंडस्ट्री में जो इसका यूज हो रहा है दैट इज फॉर मेकिंग केक्स, ब्रेड्स एटसेट्रा. जो स्पॉन्ज या एक फ्लफीनेस आती है केक्स में और दैट ब्रेड्स वगैरह में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा वी आर ऑल्सो जनरली यूजिंग इन आवर किचन for making so many things like idlis वगैरह में हम कई चीजों में यूज करते हैं बेकिंग सोडा. In the form of ENO it is used as an antacid as well. ठीक है, एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज इट इज अ माइल्ड बेसिक सॉल्ट. क्लियर? सोडियम आयन है इसके अंदर, तो ये माइल्डली बेसिक है, तो इट हैज एंटासिडिक प्रॉपर्टीज. एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट नेचर है ड्यू टू विच इट इज यूज टू प्रिपेयर स्पॉन्जी केक्स एंड ब्रेड्स, इट इज नोन एज बेकिंग सोडा. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. मैंने आपको बताया जितने भी सोडियम सॉल्ट यहाँ आपको सिलेबस में है वो सब कॉमन सॉल्ट से ही बन रहे. तो कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा. एंड ये जो प्रोसेस है, नेम इज नॉट गिवन हियर इन योर बुक बट यू कैन मेंशन दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेज प्रोसेस. साइंटिस्ट के नेम पे है. इट्स अ वेरी commonly used process in industries. Solvay's process, somewhere you can have an idea about, because in higher classes तो 11th class में तो पूरा entire diagram के साथ process है syllabus में, but right now I am just telling you the name and the reaction. तो in this process सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाना, अगेन जिसको हम ब्राइन कहते हैं, और ब्राइन पर आपको दो गैसेस पास करनी है. ब्राइन सॉल्यूशन को एक टैंक में लेके उसको अलग अलग दो टैंक्स होते हैं, एक गैस में एक टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है, दूसरे टैंक में उसका अमोनिएशन करवाना है. मींस टू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर पास्ड थ्रू ब्राइन. ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट and two products are obtained. Ammonium chloride is a soluble substance, तो वो water में mix हो जाएगा क्योंकि हम aqueous medium ले रहे हैं. And sodium hydroxide is partly soluble, मतलब बहुत कम amount में soluble है, तो ये separate हो जाएगा as a filtrate. जब इस filter out करेंगे हम इस पूरे mixture को, तो filtrate जो आएगा, residue जो आएगा, filtrate will have ammonium chloride and the
residue obtained after filtration, जो solid मिलेगा, that will be sodium hydrogen carbonate. So this is a very important compound which is used in daily life, and it is obtained by, again, raw material sodium chloride. Okay, तो reaction is, process क्या है? By passing carbon dioxide and ammonia gas through aqueous solution of common salt, that is known as brine, और उस पर आपको साइड प्रोडक्ट मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, विच इज अगेन फर्दर यूजफुल, तो इसको अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं. एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय Solvay's process. So as we have checked the pH in activity 2.4, yesterday we discussed that this is made up of two substances, NaOH base and H2CO3 acid. H2CO3 being weak acid, sodium hydroxide strong base है, तो it will have pH greater than 7 and it is a mild, or you can say non-corrosive basic salt है. corrode नहीं करेगा ये, because NaOH को न्यूट्रलाइज कर देता है H2CO3 इसमें. तो it can be used as antacid to neutralize an acid in our stomach. It is used as an antacid. और इसकी जो बेकिंग प्रॉपर्टी है, that is because कि जब भी इसको हम किसी बैटर में मिक्स करते हैं, like to prepare idlis, if we are mixing it in our dough, जो हम इडली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा बैटर whatever, उस बैटर में अगर हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं, उसके बाद हम हीट करते हैं, तो ड्यूरिंग हीटिंग बेकिंग सोडा इज अ वेरी लाइक हीट के साथ ही अनस्टेबल हो जाता है, डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट. तो हीट करने पे खुद कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट पे, रिलीज करेगा वाटर वेपर एंड CO2. एंड दिस CO2 गैस विच इज रिलीज्ड इन दैट बैटर ऑन हीटिंग. तो गैसेस क्योंकि मिक्स नहीं हो पाती है, जब आप सॉलिड इडली और वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग केक, वो सब सॉलिडिफाई हो जाते हैं ना कुक करने के बाद. तो CO2 को हाई टेम्परेचर पे आप इतना डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रख सकते. इट एस्केप्स आउट ऑफ दैट बैटर, और जहां जहां से CO2 एस्केप आउट करती है बैटर में से, वहां पे वो एम्प्टी स्पेस आ जाएंगे. क्योंकि जब भी कभी किसी, जैसे आपने रबर देखा, रबर नहीं सॉरी स्पॉन्ज देखा, स्पॉन्ज में क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे एयर ट्रैप्ड रहती है, और जैसे ही आप प्रेस करते हो स्पॉन्ज को तो एयर बाहर आती है. तो सिमिलरली इन दिस रिएक्शन CO2 इज एस्केप्ड आउट, लिविंग बिहाइंड एम्प्टी स्पेसेस जहां पे एयर फिल हो जाती है, और इसीलिए वो स्पॉन्जी हो जाता है. आप इडली या केक को अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आपको आता है, बेकिंग अच्छी आती है आपको, तो यू कैन प्रिपेयर अ वेरी सॉफ्ट स्पॉन्ज, बिकॉज जितना अच्छे से रिएक्शन होगा उतना CO2 इवॉल्व होगा, एंड CO2 विल एस्केप आउट, लिविंग बिहाइंड एम्प्टी स्पेसेस इन दैट केक और इडलीज, that traps air and it will become spongy in nature. Okay, तो ये sponge और fluffiness जो है, that is caused by escaping CO2, which is produced by decomposition, thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate. The role of baking soda here is to produce carbon dioxide, which causes sponge. Clear? अब और uses क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. आप डायरेक्टली बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हो केक और बेकिंग जिसमें भी आप कर रहे हो, जो भी बना रहे हो. अदरवाइज इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर named as baking powder. And it's a very important question here, because sometimes students don't understand the difference between baking powder and baking soda. आप केक बनाते होंगे तो जनरली घर में एक वाइट सी बॉटल आती है ऑरेंज कवरिंग, जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है, दैट इज बेकिंग पाउडर. उसका अगर कॉम्पोजिशन पढ़ो तो इट हैज बेकिंग सोडा इज द मेन कॉम्पोनेंट. बट अगर आप ये रिएक्शन देखो, इन दिस रिएक्शन बेकिंग soda decomposes to give sodium carbonate. अब sodium carbonate is still a base and it has a bitter taste. तो अगर आप केक को सिंपली बेकिंग सोडा यूज करके बना रहे हो और आपने बाई चांस थोड़ा ज्यादा बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, तो योर केक विल हैव अ बिटर टेस्ट. बिटर, कड़वा सा लगेगा आपको खाने में. तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक एसिड मिला दिया जाता है बेकिंग सोडा में, एंड दैट एसिड इज अ माइल्ड एडिबल एसिड, जिसको हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. दैट इज टार्ट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड कैन ऑल्सो बी एडेड. तो जनरली जो कॉम्पोजिशन मार्केट में अवेलेबल है बेकिंग पाउडर की, उसमें
टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा में, एंड दिस मिक्सचर इज used as baking powder. So small difference between baking soda and baking powder is what? Baking soda is a pure compound, कोई इसमें mix नहीं है कुछ भी, whereas baking powder is a mixture of baking soda and a mild acid, maybe tartaric acid or citric acid. अब इसका यूज क्या है एसिड का? जो भी सोडियम कार्बोनेट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा और उस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा. तो इससे आपको जो टेस्ट है वो बिटर नहीं आएगा केक का, एंड प्रॉपर टेस्ट आपको मिलेगा. तो इट्स बेटर इफ यू आर यूजिंग बेकिंग पाउडर इन प्लेस ऑफ बेकिंग सोडा. बट समवेयर इफ बेकिंग पाउडर इज अनअवेलेबल एंड यू हैव बेकिंग सोडा एट होम, तो थोड़ा सा माइनर अमाउंट में इसको मिक्स कर सकते हो. इट विल नॉट कॉज bitter taste. So next is uses of baking soda. Two more uses. Carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. And second user, it is also used an ingredient in antacid that I have already told in the form of ENO. It is used as an antacid because being mildly basic or alkaline in nature, it neutralizes excess acid effect in our stomach. जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है फॉर मेकिंग एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम पेप्सिन. अदरवाइज यू कैन नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन्स. जितना भी आप खा रहे हो ना वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा आपके स्टमक में अगर HCl नहीं होगा. तो दिस HCl समटाइम्स ना किसी पर्सन की बॉडी में बाय बर्थ ही होता है कि वो एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, या समटाइम्स हम बहुत हैवी डाइट ले लेते हैं तो स्टमक को थोड़ा ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है. तो इन दैट केस वी फील अ पेन और इरिटेशन इन आवर स्टमक और अपर एलिमेंट्री कैनल ईसोफेगस में भी ये हो सकती है फीलिंग, जलन जिसको हम एक कहते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन सी हो जाती है एसिड से. तो दैट कैन बी यू कैन से immediately neutralized by using a mild base, और ये mild base हम use कर सकते हैं as a sodium hydrogen carbonate which is used in the form of ENO. तभी हम ENO भी इडली वगैरह में ऐड कर देते हैं ना, इंस्टेंट इडलीज बनाते हैं, बिकॉज ENO इज नथिंग अदर देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. थोड़ा सा उसमें भी माइल्ड एसिड मिक्स कर दिया जाता है सो दैट कि वो बिटर टेस्ट ना आए. And third use of baking soda is it is used in soda acid fire extinguishers. Fire extinguishers जो जनरली हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं ना, ये सब सोडा एसिड टाइप के हैं. सोडा एसिड क्या होता है? इसमें बेकिंग सोडा और एसिड यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है और जैसे ही उसका जो नोजल है वो ओपन होता है, जब हमें रिक्वायर्ड है अगर कहीं फायर एक्सीडेंट हुआ है तो दैट केस द नोजल इज ओपन, और ओपन करते ही ये दोनों कंटेनर जो है, मतलब उसमें से एक कंटेनर स्पिल आउट कर देता है अपना कंटेंट और दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं. मिक्स होते ही आपको अगर याद हो, एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से रिलीज होती है फायर एक्सटिंग्विशर्स में से, एंड इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड फायर एक्सटिंग्विशर आफ्टर वाटर, एंड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड in industries और ये जो लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी